Hello guys, welcome back to She Codes. So in our top 100 code series, our problem 37 is to reverse the array. Okay, we have been given this array and we have to reverse it and print it. Now, there are 2 to 3 methods to solve this question. If you have been following the playlist from starting, that is from problem number 1, this question will be very easy for you. You can simply use a for loop and print the array in reverse order. That is the first method. Okay, you are printing it in reverse order. You are not making any changes in the original array. The original array is this array and you are printing it in reverse order. That is, original array is same. Now second method is making changes in the original array and reversing it. Okay, so in the second method we will make changes in the original array and we will reverse it. Okay, and the third method is using recursive function to do the same thing. Using recursive function to follow the second method. Okay, so these are the 3 methods through which you can reverse the array. There may be chances that someone may ask you reverse the array without making changes in the original array. So you can simply print it. Fine. Now, secondly, they can ask you to reverse the whole array, that original array. Then you can follow the second method. So, without any delay, let's start with our problem. So, in the first part, what we have to do is we have to print our array in reverse order. Okay. So, let's take an array with the elements 10, 20, 30, 40 and 50. Fine. This is our array of integer data type. Now let's take another variable n which will store the length of the array, which is arr.length. Done. Now we have to print the array in reverse order. Okay, this will give us the array in reverse order. It won't change the original array. For that we will be using a for loop where we have integer I whose initial value will start from n minus 1. Here n is the length of the array. Okay, the value of I should be greater than equal to 0. Okay, and I minus minus. That is, the value of I should be decremented from the length of the array to 0. Done. Now the last thing left is to print the array. Okay, so here we will print our array in reverse order. Fine, this loop will give us our array in reverse order. Done. Let's run it and check. Okay, so as you can see, we got our array in reverse order. Okay, the original array was 10, 20, 30, 40, 50 and we got our array 50, 40, 30, 20, 10. Okay, now to check is क्या हमारा ओरिजिनल एरे एक्चुअल में चेंज हुआ है कि हमने सिर्फ वैल्यू प्रिंट करी है, क्योंकि अभी हमने क्या करा है, हमने सिर्फ वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा है, हमने ओरिजिनल एरे चेंज नहीं करा है. उसको चेक करने के लिए कि हमारा ओरिजिनल एरे एज इट इज़ है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं हम सारी क्लासेस सारे पैकेजेस हम इंपोर्ट कर लेते हैं सो दैट हमें बाद में इशू ना आए. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, system dot out dot
print ln arrays to string, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उस एरे को प्रिंट करेंगे, अगर मैं ऐसा लिखूँ डायरेक्ट, ठीक है, मैं ऐसे से प्रिंट करवा दूँ, पहली बात तो ये ऐसे हमें एरे प्रिंट करके नहीं देगा। अगर मैं ऐसे कुछ प्रिंट करती हूँ तो मुझे एरे नहीं मिलेगा, एरे का कोई मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। मुझे तो मेरे एरे की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मतलब मुझे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग दिस वन, ओके। और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा एरे। डन। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ पे हम रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया है। ओके, यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हुआ। ओके, एज यू कैन सी हमें पहले हमारा रिवर्स्ड एरे मिल गया और ये हमारा ओरिजिनल एरे है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये हमारा ओरिजिनल एरे है और ये हमारा रिवर्स्ड एरे है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक मेथड टू रिवर्स एन एरे। अगर हमसे कोई पूछे कि आपको एक एरे को रिवर्स करना है तो आप ऐसे कर सकते हो विदाउट मेकिंग इन एनी चेंजेस इन द ओरिजिनल एरे, ओके। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में हमारा जो एरे है हम उस ओरिजिनल एरे को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एरे है इसको हम रिवर्स प्रिंट नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल इसी एरे को पूरा रिवर्स कर देंगे। वो कैसे करेंगे, हम सपोज ये हमारा एरे है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड में क्या करना है, हमें इस ओरिजिनल एरे को ओरिजिनल इसी एरे को हमें पूरा रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टार्ट वेरिएबल लेंगे जो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इंडेक्स 0 से, और एक एंड वेरिएबल लेंगे जो n-1, अगर हमारा एरे की लेंथ n है तो वो n-1 से स्टार्ट होगा। इसको और इसको हम स्वैप कर देंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हम इनको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टार्ट है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, स्टार्ट वेरिएबल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और एंड वेरिएबल को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को स्वैप कर देंगे, फाइन। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा जब 40 और 10 स्वैप हुए तो 40 यहाँ आ जाएगा, 10 पीछे चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 30 और 20 स्वैप हुए तो 30 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा। हो गया हमारा एरे रिवर्स, ठीक है। बस यही करना है हमें। हमारा जो एरे है हम उसमें क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे, एक स्टार्ट से स्टार्ट होगा और एक एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक स्टार्ट वेरिएबल, एक एंड वेरिएबल, और उन दोनों की वैल्यूज को स्वैप करके स्टार्ट वेरिएबल को हम इस साइड इंक्रीमेंट करेंगे और एंड वेरिएबल को हम इस साइड डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, एंड दिस इज हाउ वी विल reverse our original array. Let's start with the code. So here we have our array. Let's create a variable start whose initial value is 0. Okay, and we have int end whose initial value will be n-1, which is n is the length of the array. Fine. Now we will be using while loop. The while loop will run until the value of start is less than end. क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे।
तो स्वैप कैसे करते हैं, बहुत सारे स्वैप करने के दो मेथड्स होते हैं, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो हम एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे इंट टेम्प, ठीक है। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारी एरे, और एरे का इंडेक्स स्टार्ट, ठीक है, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, ओके। फिर एरे डॉट स्टार्ट इक्वल्स टू एंड ये जो एरे का लास्ट एलिमेंट है उसको हमने किसके इक्वल रख दिया, फर्स्ट एलिमेंट के, डन। अब इसके बाद हम इस लास्ट एलिमेंट को टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे इक्वल्स टू टेम्प। इसके बाद स्टार्ट वेरिएबल होगा इंक्रीमेंट और एंड वेरिएबल होगा डिक्रीमेंट इट, okay, this is how you make changes in your original array and reverse it, done। इसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट कैसे करवाना है, वही फॉर लूप यूज करना है, i is equal to 0 less than n, okay, less than n and i plus plus, okay, and let's run it and check if it is correct or not। okay, so we got our array before, उसके लिए हम क्या करेंगे, arrays, हमारा array हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, arrays डॉट टू स्ट्रिंग array। ओके, सो इफ यू सी array before, पहले हमारा array ये था, फिर हमने क्या करा, हमने while loop यूज करके array को रिवर्स करा। Here we have used a while loop and we reversed it, तो उसके बाद हमारा array ये है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिनल array में हमने चेंजेस किए हैं। So thank you so much for watching this video. Do like the video if this video really helped you, and share your thoughts and comments. Subscribe SheCodes if you haven't subscribed yet. Stay tuned for more such tutorials. Thank you. Bye bye. Happy coding.